In this presentation, we are going to discuss about the addition theorem of probability in case of three events. Till now, we have understood the addition theorem, but we have talked only about two events. So, if instead of two, now we have three events, how our addition theorem will be modified, that is what we have to understand. So first we have written that actually when we have to use the addition theorem, what are the situations when we use the addition theorem, right? So if there are three events A, B and C, we have to find out the probability of A or B or C. What does this actually mean? The probability of A or B or C means that we want to know the probability of occurrence of either A or B or C. So if we have to write it in the form of a statement, it is the probability of occurrence of A or B or C. We can also write it as the probability of occurrence of at least one of the events. At least one of the events. So we have three events here, A, B and C, and we are interested in finding out the probability of the occurrence of at least one of the events. So at least means अगर इन तीनों में से एक भी होगा, that will be treated as a success. So if we have A, that is also a success. If we have B, that is also a success, and if we have C, that is also a success, right? So what if A and B happen at the same time, or B and C happen at the same time, or C and A happen at the same time, or A, B and C, all three happen at the same time? To answer that question, we need to know that whether these three events are mutually exclusive or not. If they are mutually exclusive, then there is no chance of A or B or C happening at the same time. That means only one can happen. If A happens, B and C will not happen. If B happens, then C and A will not happen. And if C happens, then A and B will not happen. So this is the meaning of the mutually exclusive events. So if these three events which we are talking about are mutually exclusive, that is the first category. In that case, how are we going to write down the addition theorem? P, A or B or C. That means the probability of occurrence of either A or B or C will simply be the sum of the probability of the occurrence of A, probability of the occurrence of B and probability of the occurrence of C, because these are the only three ways in which we can have success. And success we have defined that if we get A, that is also success, if we get B, that is also success, and if we get C, that is also success. And we know that A, B and C cannot happen at the same time. So we the probability of occurrence of A, probability of occurrence of B and the probability of occurrence of C, if we add these three, it will give us the total number of possibilities when we have the success, and that is either the occurrence of A or B or C. तो पूरे जो चांस हमें चाहिए वो इन तीनों को जोड़ के हमें मिल जाता है. तो A के होने के कितने चांस हैं, B के होने के कितने चांस हैं और C के होने के कितने चांस हैं. अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो अब हमें पता है कि इन सारी सिचुएशंस में या तो A होगा या B होगा या C होगा, और तीनों में से किसी का भी होना हमारे लिए सक्सेस है. So that is in case of mutually exclusive events. But instead of mutually exclusive, if we have the not mutually exclusive events, then what will be the situation? ये पहला वाला जो situation है, अगर हम इसे Venn diagram के through express करें तो we will have three circles each representing A, B and C, and there is no common area between A, B and C. तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ये हमने ड्रॉ किया है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसमें और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है उनमें क्या डिफरेंस है. So we can now concentrate on those events which are not mutually exclusive.
So after understanding that if A, B and C cannot happen at the same time, then we have to talk about the second situation, that what if A, B and C happen at the same time, and there is a possibility of the happening of A and B and C at the same time. We again draw a diagram to show this is A, this is B, this is C. So we have A, B and C. These are the three events that we are talking about, A, B and C. And now we can see that these are overlapping circles. That means there are common areas between A and B, common area between B and C, and common area between C and A. And there is one area which is common to all three, A, B and C. ठीक है, तो यही चीज़ है जो हम कह रहे हैं कि अगर एटलीस्ट एक की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमारे लिए सभी सक्सेस हैं. ठीक है, तो ये जो एरियाज हैं इनको हम लिख सकते हैं. वी कैन डिनोट देम बाय स्मॉल लेटर्स. लेट अस से P, Q, R, S, T, U, V. So now each enclosed area has been given a letter. We have used a small letter to denote that area. तो अब हमारा जो, अब इसको अगर हम समझें तो हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी एक के होने की, तो एक के होते ही वो सक्सेस हो जाएगा. तो एक का होना भी सक्सेस है, दो का होना भी सक्सेस है और तीनों का एक साथ होना भी सक्सेस है. तो हमारी जो सक्सेस की संभावना है वो ये पूरा एरिया है जो हमने इन तीनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन से दिखाया है. तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. इट विल बी P प्लस Q प्लस R प्लस S plus T plus U plus V. Right? So how many we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 small areas out of this total intersection of the three circles. If we add all of them, we will get the probability of our success. और हमारी सक्सेस है किसी भी एक का होना. तो P जो है, अब एक एक को देखिए. P क्या है? P ये एरिया है जहाँ पर कि सिर्फ A का पार्ट आ रहा है. So only A is happening, right? So this is P. Now this area T is only the occurrence of B. T में क्या हो रहा है? सिर्फ B. और यहाँ पर जो एरिया है V, that is the occurrence of only C. C का सिर्फ अकरेंस कहाँ पर हो रहा है? V में. तो ये तीनों सक्सेस हो गए. P ले लिया हमने, T ले लिया और हमने V ले लिया. ठीक है, अब A और B अगर एक साथ हो रहे हैं तो उसमें हमारा एरिया क्या आ रहा है? Q प्लस S. ये वो एरिया है जहाँ पर A और B एक साथ हो रहे हैं. If I just denote it with horizontal lines, this area is the occurrence of A and B. और A और B का एक साथ होना भी सक्सेस है. उसमें हमारा एरिया को हमने क्या डिनोशन दिया है? Q and S. So Q प्लस S, ये दोनों भी हमने ले लिया यहाँ पर. अब B और C एक साथ भी हो सकते हैं, और B और C जब एक साथ हो रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा एरिया आ रहा है? S प्लस U, राइट? सो वी आर गेटिंग S प्लस U. अब S तो हम एक बार ले ही चुके हैं तो हम उसे दोबारा नहीं लिखेंगे. सो वी विल राइट ओनली U. सो वी हैव टेकन, S आ चुका है, U हमने ले लिया. और फिर हमारा बचा यहाँ पर A और C का इंटरसेक्शन. अब A और C के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? R एंड S. तो R हमने नई चीज़ है, S हम पहले ही ले चुके हैं. सो वी विल जस्ट हैव अनदर थिंग दैट इज R. तो ये जब सारे हमने लिख दिए हैं, सो वी हैव कवर्ड ऑल द पॉसिबिलिटीज, राइट? अब इसमें भी जो हमने इंटरसेक्शन लिए हैं उनमें A और B के इंटरसेक्शन में Q ऐसा था जिसमें सिर्फ A और B हो रहे हैं, और S ऐसा था जिसमें A, B और C तीनों एक साथ हो रहे हैं, राइट? तो S ऐसी एरिया है को डिनोट कर रहा है जिसमें A, B और C तीनों एक साथ हो रहे हैं, और Q ऐसे एरिया को डिनोट कर रहा है जिसमें सिर्फ A और B हो रहा है. इसी तरह से B और C के इंटरसेक्शन में U ऐसा एरिया है जिसमें सिर्फ
सी और बी एक साथ हो रहे हैं, और एस ऐसा एरिया है जिसमें ए बी और सी तीनों एक साथ हो रहे हैं, और ए और सी के इंटरसेक्शन में आर ऐसा एरिया है जिसमें कि सिर्फ ए और सी हो रहा है, और एस ऐसा एरिया है जिसमें ए और सी के साथ बी भी आ रहा है, राइट। तो ये सारे ही हमारे लिए सक्सेस हैं। तो अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी जिस तरह से हम लिखेंगे उसमें ये सारी वैल्यूज आनी चाहिए। तो हम अगर एडिशन थ्योरम लिखें ए और बी और सी, तो वो इस तरह से लिखी जाए कि इसमें ये सभी एरियाज पी क्यू आर एस टी यू वी ये सब एक एक बार आ जाएं। तो ये हमारा थ्योरम लिखने का पर्पस है। अब जो थ्योरम हम लिखते हैं उसको आप कैसे समझेंगे? दिस इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस, okay, we have three now we will say minus p a b minus p b c minus p c a and plus p a b c. So what have we done here? जो हम चाहते थे वही हमने लिखा है, बट इन टर्म्स ऑफ द एडिशन थ्योरम। ये कैसे आएगा? जो हमने लिखा है वो इस थ्योरम के थ्रू प्रूव हो जाएगा। वो कैसे होगा? व्हेन वी हैव रिटन पी ए, तो हमने पूरा सर्कल ए ले लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स दिस एंटायर फर्स्ट सर्कल, जो हमने ए जिसको नाम दिया है, पूरा सर्कल की प्रोबेबिलिटी आ गई उसमें, ठीक है। तो ए आ गया, इसका मतलब अब आप अगर हम हमारे जो हमने डिनोट किया है एरिया को उसके हिसाब से लिखें तो क्या आ गया? P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ठीक है। ये पूरे सर्कल में चार हमारे लेटर आ रहे थे, P Q R S, जो चार एरियाज को डिनोट कर रहे थे, वो चारों हमने लिख दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ये चारों हुए तो ये ए की प्रोबेबिलिटी है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब बी की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो बी के सर्कल में देखेंगे कि हम कौन कौन सा एरिया आ रहा है। बी के सर्कल में कौन कौन सा एरिया आ रहा है? वी हैव क्यू एस टी यू, क्यू एस टी यू, राइट। फिर हमने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, राइट। सो सी मीन्स दिस, तो इसके भी चार पार्ट्स हैं, आर एस यू वी प्लस आर प्लस एस प्लस यू प्लस वी, ठीक है। तो अगर हमने इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो ये आ जाएगा पी क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस क्यू प्लस एस प्लस टी प्लस यू प्लस आर प्लस एस प्लस यू प्लस वी, राइट। और फिर हमने कहा है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ये पूरा है। सो माइनस किया हमने, उस ए बी में जो आ रहे हैं दो एरियाज हैं, क्यू एंड एस, सो माइनस क्यू माइनस एस। देन वी से माइनस बी सी, तो ये बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला एरिया है, इसमें दो चीजें आ रही हैं, एस एंड यू, सो माइनस एस माइनस यू। फिर हमने माइनस किया बी सी, बी सी के बाद माइनस करेंगे सी ए, सी ए में कौन सा कॉमन एरिया आ रहा है? दिस वन। सो दिस ऑल्सो हैज टू पार्ट्स, आर एंड एस, सो माइनस आर माइनस एस, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि कॉमन टर्म्स को हम एक साथ ले आते हैं। तो P सिर्फ एक बार आ रहा है, P को हमने एज इट इज लिख दिया। Q दो बार आ रहा है, 2 प्लस 2Q प्लस R भी दो बार आ रहा है, 2R प्लस S, S भी दो बार आ रहा है, 2S, राइट। रादर S तीन बार आ रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो दिस विल बी 3S, 3S, and after that we have Q, Q is coming only once, then we have Q is coming twice, this is 2Q, after that we have S, we have already taken, क्या बचा? T, T सिर्फ एक बार आ रहा है, प्लस T, U, U is it coming twice? Yes, U plus U, so this is plus 2U, and V, V is coming only once,
प्लस वी, ठीक है। तो ये हमारी टर्म आ गई थी जब हमने सभी को ऐड किया, फिर हमने माइनस किया, तो माइनस क्यू माइनस एस माइनस यू माइनस आर माइनस एस, ठीक है। तो ये माइनस करते हुए जब हम देखते हैं कि तीन टर्म्स तो अलग अलग है, क्यू माइनस यू माइनस एस, एस नहीं आर, लेकिन जो एस है वो 3 बार आ रहा है, माइनस 3 बार हो रहा है, सो दिस इज -3s, राइट। सो -3s। अब इसको करने से क्या होगा, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, p एज इट इज रहेगा, वी हैव p प्लस 2q माइनस क्यू, एक q निकल गया तो सिर्फ q रह गया, p प्लस q प्लस r में से 2r है, उसमें से एक r चला गया तो हमारे पास रह गया ओनली 1r। देन 3s है हमारे पास, 3s प्लस हुआ था और 3s माइनस हो गया, तो s पूरी तरह से खत्म हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। देन वी हैव द वैल्यू t is there, t is only once, right? And then we have u, 2u minus u, एक बार u माइनस हो गया तो हमारे पास एक u रह गया, and v is only once, we have v only once, right? So I think we have repeated this q here, q एक बार यहाँ आ चुका है, so this will be 3s, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो फाइनल वैल्यू आंसर आ गया ये p प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी प्लस यू प्लस वी, ठीक है। और हमने क्या लिखा था, क्या आना चाहिए, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू प्लस वी। तो 7 टर्म्स हमने लिखी थी, उन 7 में से 6 तो आ गई, और s जो है वो पूरी तरह से कैंसिल ही हो गया जब हमने ये पूरी एक्सरसाइज की, तो इसलिए हमें उस s को दोबारा जोड़ना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड s, राइट। तो s को जोड़ने का मतलब है कि हमने किसको जोड़ा है, s इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल 3 एट द सेम टाइम, a b एंड c। तो a b और c तीनों की अकरेंस का जो चांस है वो तो पूरी तरह से माइनस हो गया, अगर हमने +3 टाइम्स उसे किया था फिर वो 3 टाइम्स माइनस भी हो गया, तो ये वाला एरिया तो हमने हटा ही दिया। तो ये जो एरिया हट गया है इसको दोबारा से जोड़ना पड़ेगा, ये a प्लस बी प्लस सी तीनों का एक साथ होना, राइट, और वी कैन से कॉल इट एज ए बी एंड सी, राइट। तो अब ये जो है वो s है, s को हमें दोबारा जोड़ना है, एंड s इज व्हाट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ a b एंड c, इसलिए हमने इसको दोबारा जोड़ा है। सो इफ वी से प्लस s, यहाँ पे अगर हम s करेंगे प्लस s, तब हमारा ये s जो है इस फाइनल वैल्यू में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी राइट द फॉर्मूला फॉर एडिशन थ्योरम इन केस ऑफ 3 इवेंट्स, PA प्लस PB प्लस PC। तो तीनों में से किसी एक का होना भी सक्सेस है, 2 का एक साथ होना भी सक्सेस है, और तीनों का एक साथ होना भी सक्सेस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें इस तरह से निकालनी है कि ये वैल्यूज एक एक बार ही आए, एक से ज़्यादा बार नहीं। तो थ्रू दिस वेन डायग्राम वी हैव सीन कि अगर हम PA प्लस PB प्लस PC करते हैं तो एक ही वैल्यू एक से ज़्यादा बार आ जाती है, इसलिए हमें उसे माइनस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब इनके इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं, A और B के, B और C के, और C और A के, तो जो बीच वाला एरिया है जिसमें A B और C दोनों हैं, तीनों हैं रादर, तो वो पूरी तरह से माइनस हो जाता है, तो इसलिए वो ख़त्म हो जाता है, और उसे एक बार हम दोबारा ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू प्लस वी सिर्फ ये बच जाते हैं, और यही हमें चाहिए। सो दिस इज हाउ वी हैव रिटन द एडिशन थ्योरम फॉर द 3 events which are not mutually exclusive. So now we will do some questions related to this.